Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Last time, did we do this question? Bisectors of interior angle. No, sir. We didn't do this. Okay. So we'll start with that. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. And while others join, we will just draw this. Okay. So we have to prove BTC is half of BAC. This relation. How will we go about doing this? Sir, with exterior angle property. Okay, so we can say that angle ACD is equal to angle A plus angle ABC, right? Now, what can we do? We can divide the two sides by 2, right? Now we can go and write AC, half of ACD as TCD, right? Angle TCD is equal to angle A, which is BAC by 2 plus ABC by 2, right? ABC by 2, we can write it TBC. Right? Now, what do we know? That TCD is exterior angle to. Good afternoon. TCD is exterior angle of triangle BCD, right? So we can say angle TCD is equal to angle TBC plus angle BTC, right? Okay, so this is equation 1 and this is equation 2. We can subtract the two equations. 1 minus 2 gives, what does it give? This and this goes away, angle BAC by 2 minus angle BTC. So angle BAC
AC by 2. Okay, understood? So Yes, we sir. use the exterior angle 2 times. A transversal intersects two parallel lines. Prove that the bisectors of any pair of corresponding angles so formed are parallel. Okay, so there are two parallel lines and there is a transversal. Now we have to any pair of corresponding angles. Let's say we take the bisector of this and we take the bisector of this. We have to prove, ये given है, we have to prove that these are parallel. How will we do this? How will we do this? सर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सर बराबर हो जाएंगे सर L पैरेलल टू M एंड A भी ट्रांसवर्सल हाँ, तो ये एंगल, see this angle is equal to this angle and these angles sir. are इनके half bisector of angle. this angle, which means that let's say this angle is x, then this is also x and this is also x and this is also x, right? यस सर Which means if these two angles are equal, so now this is also a transversal to P and Q and Yes, sir. the corresponding angles are again equal, half of these angles, right? And if we can say that the corresponding angles are equal, then we can say that the lines are parallel. Okay, so we can prove it like this. I am not writing it, just to save some time we will try to do a little bit more questions, but this is a very simple proof. Prove that through a given point we can draw only one perpendicular to a given line. How will we do this? There is a given line, okay, and we have a point. The question is, let's say this point is P. This is given. Okay, we can only draw one perpendicular. How will we prove such a thing? सर BC को सर बाइसेक्ट करेंगे सर बाइसेक्ट करके सर मिला देंगे A से जो मिड पॉइंट है बाइसेक्ट क्यों करेंगे? बाइसेक्ट का तो क्वेश्चन इज अबाउट अ परपेंडिकुलर. BC तो मैंने ही पॉइंट्स बनाए हैं, कोई ऐसे पॉइंट्स तो है नहीं, एक गिवन लाइन है L, उस पे पॉइंट A से परपेंडिकुलर डालना है और वो ये कह रहा है कि एक ही परपेंडिकुलर डाल सकते हो, आप दो डाल ही नहीं सकते. देखिए इस तरह के प्रूफ्स, क्योंकि व्हाट गिव्स यू एन आइडिया, राइट? हमें ओनली वन प्रूव करना है. ओनली वन कैसे प्रूव हो सकता है कि दो नहीं हो सकते? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनली वन? टू आर नॉट पॉसिबल, टू और मोर आर नॉट पॉसिबल, right? That is the meaning of only one. So not possible means we are talking of some contradiction. So this proof will be done by contradiction.
Yes. Okay, so we will say the first part is we will, how do we write proofs? Everybody knows it, right? What is the first thing we write? We write given, Point given. right? So given, Yes, sir. there is not much, A is a point, not on a line L, right? The second is to prove. To prove again is again in English only one perpendicular can be dropped, okay, or built or drawn. Now the next is we will write a construction, okay. What is a construction? Draw a perpendicular from A to L, okay. So we have drawn this perpendicular to meet it at a point, let's say P. This we write in construction. Draw a perpendicular to meet L at P. ठीक है, ये हमने लिख दिया. अब प्रूफ कैसे लिखेंगे? By contradiction लिखेंगे. So we will say let A Q be another perpendicular to L. Okay, so we will take this as Q. Right? Now what will happen? ट्रायंगल में सर दो राइट एंगल भी हो सकते हैं. हाँ, ठीक है. So how will we write it? Okay, now angle P is equal to 90 degree is equal to angle Q, right? However, okay, then we will say angle A plus angle P plus angle Q is equal to 180 degree, which implies angle A plus 90 degree plus 90 degree is equal to 180 degree, which implies angle A is equal to 0. Okay, implies PQ and implies AQ and AP coincide. Okay, implies only one perpendicular plane. Okay, this is the way to write it. Another way is what you just said, right? We can say a triangle cannot have two right angles. Okay, although it is not a theorem, so saying that is not 100% justified, but we know it is true, right? So I think you will get marks for that also. You can say a triangle cannot have 290 degrees. So our assumption that another perpendicular can be drawn is wrong. So we have proven that it can be only one perpendicular by contradiction. Understood? That is also a valid proof as such. Okay. Just that you can't have two right angles is not a theorem, but it is a well-established fact. So I think that the examiner would give full marks for that. Okay. Prove that
two lines that are respectively perpendicular to two intersecting lines intersect each other. What does the question mean? Can somebody explain that? It's a, wordy, very complexly written question. What does it mean? सर इसमें दो परपेंडिकुलर लाइन आपस में काट रही हैं एक दूसरे को। हाँ, नहीं, वो ये कहता है कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं हमारे पास, राइट? तो इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब है कि दे आर नॉट पैरेलल लाइंस, राइट? Yes. तो वो ये बोल रहा है कि दो लाइन ले लेते हैं हम, दो लाइंस, ठीक है, ये L है, ये M है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर बनाऊं और इस पे भी एक परपेंडिकुलर बनाऊं, तो वो भी इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। यानी कि मान लीजिए ये LM है और ये PQ है, perpendiculars of P and Q. So what do we have to prove? That P is not parallel to Q. When L not parallel to M. Okay? M. अगर L और M पैरेलल नहीं है तो P और Q भी पैरेलल नहीं होंगे। That is another way to say, because intersecting का मतलब है जब एक ही प्लेन पे हैं। अगर इंटरसेक्टिंग का मतलब सिंपल होता है कि वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि we are only talking about a single plane. Although it's not written in the question, but all our questions are on a single plane, right? तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? How will we prove this? सर क्वेश्चन एक बार और समझा दो सर, समझ नहीं आया। तो ये दो लाइंस हैं, ओके? Just a second, let me draw it again. There are two lines. ओके, ये L है, ये M है, और सॉरी ये M है, ओके? ये L है और ये M है, ओके? अब हम अगर इन पे इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर्स बनाएं, ओके? Let us make perpendiculars, okay? The red ones are perpendicular lines. So ये perpendiculars will also intersect. Means they will also not be parallel. How will we prove this? सर 90 डिग्री। हाँ, ये 90 डिग्री है एंगल्स। तो अब
अप्रोच क्या अप्रोच हो सकती है जिससे हम ये प्रूव कर दें कि ये पैरेलल नहीं हो सकते? अब अगेन हमारा किस तरह का क्वेश्चन है कि नहीं हो सकते। नहीं हो सकते तो बड़ा मुश्किल है ना प्रूव करना, तो क्या करते हैं ऐसे में? सर हम मान लेंगे कि सर हो सकते हैं। हाँ, तो क्या मानेंगे कि हम ये पैरेलल हो सकती है P एंड Q। सो हमारा प्रूफ बनेगा लेट P बी पैरेलल टू Q। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम ये अजम्पशन कि P इज पैरेलल टू Q आखिरी में डिस्प्रूव कर दें, राइट? ये हमारा अप्रोच होगा। तो आप बताइए कैसे होगा? एल और सर एल और एम। क्या कर सकते हैं? अब हमने क्या मान लिया है? हमने क्या माना है जिसको हम कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे कि P इज पैरेलल टू Q मान लिया है। और क्या माना हुआ है हमने? L एंड M इंटरसेक्ट। सो लेट अस से let L and M intersect at point, let's say A। तो ये पॉइंट A हो गया, और हमने कहा कि जो परपेंडिकुलर्स हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है ना, ये तो गिवन है, दिस इज गिवन, इसमें हमने कुछ गलत नहीं प्रूव करना है, इसको हमें वी नीड टू कॉन्ट्रडिक्ट, राइट? तो हम क्या करेंगे? द प्रूफ वी कैन डू इज कि इस पॉइंट ए का तो कुछ यूज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहां पे एक और लाइन बना दे, लेट्स से लाइन आर which is parallel to P and Q. Let R through A be parallel to both P and Q, right? R को हम पैरेलल बना सकते हैं P और Q के, क्योंकि P और Q पैरेलल है, right? Now somebody can tell me how the proof can happen. Now any idea? See, now this angle should be equal to 90 degree. Co-interior angles या corresponding angles, कैसे भी बोल लीजिए आप, right? यस सर, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमने माना हुआ है, राइट? तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग या को इंटीरियर एंगल कोई भी प्रॉपर्टी लगा लीजिए, 90 ही होगा, राइट? सिमिलरली ये एंगल भी 90 होगा, राइट? अगर Yes, दोनों एंगल 90 होंगे तो इसका मतलब क्या है कि सर वो मान लीजिए ये पॉइंट P था, कैपिटल P था, ये पॉइंट कैपिटल Q था, राइट? तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि PAQ इज अ लाइन। यस सर, बट ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस थे,
Intersecting lines will be at an angle. They cannot be at a 180-degree angle, right? Then you don't call them intersecting. तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि L अगर P और Q पैरेलल नहीं है तो हमने ये प्रूव कर दिया कि L और M जो है वो इंटरसेक्टिंग नहीं है. But L and M are intersecting lines. It means that our assumption P is parallel to Q is a wrong assumption. P is not parallel to Q. समझ आया आपको? ये थोड़ा सा बहुत आसान प्रूफ नहीं है. अगर नहीं समझ आया, हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है, हम कर सकते हैं दोबारा. कोई है जिसको इसमें कोई चीज ना समझ आई हो इस प्रूफ में? सर एक बार दोबारा बता दीजिए लास्ट से. ठीक है, ठीक है. तो हम लिख के करते हैं पूरा प्रूफ, राइट? कंस्ट्रक्शन तो सबको समझ आ गया है, राइट? तो कंस्ट्रक्शन आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन. चंदन. Okay, so what, let us say P is parallel to Q. Okay, now construction. Draw चंदन. another line okay, R parallel to P and Q. Okay, so अब हमने एक लाइन बनाई यहाँ पे R. PQ. Okay, now we can say, and we will put a point R on it. Now what do we say? Angle on this, there's a point P. So, angle, we should name these points also to write the proof, right? So angle MXQ is equal to 90 degree. ये given है. Angle LYP is equal to 90 degree given. Perpendiculars, right? Now we will say angle, this angle, okay, YAR is equal to angle LAR is equal to which angle? LYP. Correspond. Okay, so ये 90. Now we will this is this angle. Now we will take this angle, okay. So angle MAR
कि MAR is equal to MXQ is equal to 90 degree. Again the same reason, corresponding angles. Right? Now we have got YAR and MAR. Right? Now angle YAR plus angle MAR is equal to 90 plus 90 is equal to 1. Okay, implies angle implies YAR is a straight line. But L and M are intersecting lines, यार plus mar. right? So we have contradicted our assumption that P is parallel to Q. Understood? This is the full proof. अभी आ गया? आपने किसने एक बार फुल करने को कहा था? समझ आया पूरा ये? यस सर. हाँ, ओके, गुड. क्योंकि ये जो इस प्रूफ्स में थोड़ा सा जो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन शुरू में मुश्किल लगता है, क्योंकि काउंटर इंट्यूटिव होता है. हम पहले कुछ गलत खुद ही एज्यूम करते हैं और फिर उसी को गलत प्रूव करके सही प्रूफ को प्रूव करते हैं. ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, किसी टाइप के प्रूफ में ही ये टेक्निक यूज होती है. ठीक है, और मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया है कि किस तरह के प्रूफ्स में आपको ये लगना चाहिए कि कॉन्ट्रडिक्शन काम में आएगा, जहां पे हमें चीज इस तरह की प्रूव करनी है कि दे आर नॉट पैरेलल. राइट? अब नॉट पैरेलल का क्या मतलब है कि पैरेलल प्रूव करने की कोशिश करो और फेल हो जाओ उस प्रूफ. राइट? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो है कॉन्ट्रडिक्शन यूज होता है. या ओनली वन such line can be drawn. Only one such line can be drawn type of question. Always you say let's assume we draw another line. हाँ, बोलो चंदन. सर जैसे किसी दो ट्रायंगल के सर कोरस्पोंडिंग साइड दे रखे हैं सर कि ये साइड इसके इक्वल है, और सर एमसीक्यू में पूछा गया सर कि कौन सी ट्रायंगल सर किसके कॉन्ग्रुएंट है. सर ये कैसे बताएंगे सर? जैसे कि ए बी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू आर पी एंड सी इक्वल टू पी क्यू. तो सर हम ये कैसे पता करेंगे कौन सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? दोबारा से बोलो चंदन. ए बी इक्वल टू पी क्यू. सर क्यू आर. अच्छा, इज इक्वल टू क्यू आर. दूसरा क्या है? बी सी इक्वल टू आर पी. बी सी इज इक्वल टू आर पी. तीसरा सी ए इक्वल टू पी क्यू. ठीक है. तो देखिए, इसमें ना जो सबसे आसान तरीका रहता है वो ये रहता है कि आप दो ऐसे ट्रायंगल कोई भी ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, अब इसमें ए बी लिखिए और यहाँ पे क्यू आर लिखिए. ठीक है, अब ये बी सी हो गया. अब बी सी लिखा तो आर पी बनाना है. अब ये आर पी बन गया. ठीक है, अब जब ये किया था हमने तो इसको मार्क कर लीजिए. अब बी सी किया है मार्क तो इसको मार्क कर लीजिए आर पी. ठीक है, अब जो सी ए है वो पी क्यू, तो वो सब हमारे मार्क हो गए. राइट? यस सर. अब
अगर क्वेश्चन है केवल कि बताइए कौन से कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो हमें एक ही ऑर्डर में लिखना है, राइट। हमें लिखना है ए बी सी, राइट, इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी किसके साथ है, पी क्यू आर के साथ है, तो क्यू है यहाँ पे, राइट। फिर बी के साथ आर है और सी के साथ पी है, तो ये ऐसे हो गया। ओके, कभी कभी इस वाले में हमें थोड़ा सा आसानी हुई करने में, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने इसको आर क्यू लिखा होता और हाँ इसको आर क्यू लिखा होता, इसको आर पी लिखा होता, तब करके देखते हैं कि मैंने दो ट्राइंगल लिए। सर सर इसका आंसर ट्राइंगल सी ए बी कंग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है। हाँ, कौन सा दिया है, सी ए बी बी और कंग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हाँ, तो सी के साथ पी है और सॉरी सी के साथ पी है, ए के साथ क्यू है और बी के साथ आर है, पी क्यू आर, राइट, ये दिया हुआ है ना। हाँ, तो ये करेक्ट है, क्योंकि देखिए सी के साथ पी है, ए के साथ क्यू है और बी के साथ आर है। अब देखिए मान लीजिए मैंने इसको उल्टा लिख दिया, क्यू आर की जगह आर क्यू लिख दिया, आंसर तो सेम ही रहना चाहिए, राइट। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा ए बी, यहां लिख दिया आर क्यू, राइट। अब मैंने कहा बी सी, ये बी सी ली, बी सी इज आर पी, तो आर पी, तो ये मेरा बन गया आर, राइट, और ए सी इज इक्वल टू। अब देखिए मेरा एकदम देखने में थोड़ा सा टेढ़े आए हैं ये ट्राइंगल, राइट। यस सर। अब लेकिन हमें कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर आपको ऐसे में कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये एंगल अब देखिए इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच का जो दो वाले का एंगल है, वन कट और टू कट वाले का एंगल कौन सा है, वो बी है। यहाँ पे वन कट और टू कट वाले का एंगल कौन सा है, आर है, तो बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर, ठीक है। अब वन और थ्री कट वाले का एंगल ए है, वन और थ्री कट वाले का ये क्यू है, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई, राइट। तो दो सर्कल, अब बचा वो हो गया ये। तो अब इसने मान लीजिए यहाँ पे सी ए बी लिख दिया, अब आपको दूसरा ट्राइंगल लिखना है, तो सी कौन सा है, ये वाला, तो पी लिख दीजिए। ए ये दो सर्कल वाला क्यू आ गया उसकी जगह, बी एक सर्कल वाला आर आ गया, तो कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो ये तो देख, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में था वो बहुत आसान था, मैं अगर इसको थोड़ा उल्टा कर देता हूं तो कई बार ड्राइंग भी उल्टी आ जाती है। लेकिन हमें क्या चेक करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो कट हो रहे हैं वो एंगल्स कौन से हैं, ठीक है ना। जैसे ये एक और ये वन कट और टू कट वाले का एंगल बी है, यहाँ पे वन कट और टू कट वाले का आर है, तो ये ही कॉरेस्पॉन्डिंग, समझे आप। यस सर, आगे समझ। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब इसमें ध्यान दे के करना पड़ता है बस, और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो आगे पीछे लिखे हो सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द एंड, द टाइम इज ओवर नाउ, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू। व्हेन इज योर मैथ्स एग्जाम, टुमारो? हाँ, ओके ओके, सो वी विल डू साइंस इन द नेक्स्ट क्लास, okay? No. Okay then. Okay, Thank you very much. All the very best for your exam tomorrow. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.